حفاظت کے لیے ان کے گھر والے پریشان ہیں اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں موجود کشمیر اسٹوڈنٹ کو الرٹ رہنے کی اپیل کی ہے۔ یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسی سچویشن ہے؟ اس کے علاوہ کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے ایک ٹویٹ میں یہ واضح کیا ہے کہ کئی ریاستوں سے کشمیر اسٹوڈنٹ کے پریشانی بھرے کالز آ رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے کئی ریاستی خاص طور پر سیاسی لیڈران نے بیان جاری کیا ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک بھر میں کئی معاملات سامنے آئے ہیں جن میں کشمیری اسٹوڈنٹ کو پریشان کیا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ انہیں اپنا رہائش خالی کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ایسے میں لیڈران نے مرکزی سرکار سے کشمیری اسٹوڈنٹ کی حفاظت کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے اور وہیں اس مدے پر جموں کشمیر کے سی ایم عمر عبداللہ نے بھی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں ایک ہی ملک سے گزارش ہے کہ کشمیریوں کو دشمن نہ سمجھے۔ ہم دوشی نہیں ہیں، کشمیری دوشی نہیں ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ امن کے دشمن نہیں ہیں، جموں کشمیر کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ ملک بھر میں ان تمام تر ماحول کے بیچ میں اس وقت جو سب سے چونکانے والی بات یہ آ رہی ہے، ایک طرف ہم نے پہلگام کا سانحہ دیکھا جہاں پہ معصوم لوگوں کو مارا گیا، دہشت گرد اپنی منشا میں کامیاب ہوئے اور جنگلوں کی اور بھاگ لیے۔ اس کے بعد کشمیر کے لوگوں نے ہمیں کس طریقے سے اپنے دل میں بسایا، اپنی پوری محنت اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے سیاحوں کو باہر نکالا اور اب ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش چل رہی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کرنے کے باوجود بھی ان سے ایک پیسے تک وصول نہیں کیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کوششیں ہیں جو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اپنی محنتوں سے کر دکھایا ہے۔ کشمیر کے لوگوں کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کس طرح اس حملے کے بعد باہر آ کے اس حملے کی مذمت کی۔ کٹھوا سے لے کے کپوارہ تک، پورا چناب سے لے کے پیر پنچال تک، شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں لوگ اپنی مرضی سے باہر نہیں آئے اور جہاں لوگوں نے باہر آ کے اس حملے کے خلاف ایک ہی آواز میں بات کی اور کہا کہ یہ ہمارے لیے نہیں تھا، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ میری صرف ایک معتبانہ گزارش ملک کے باقی لوگوں کے ساتھ، مہربانی کر کے کشمیریوں کو دشمن مت سمجھیے، ہم قصوروار نہیں ہیں۔ اگر ایک طرف سے آپ مان کے چلتے ہو کہ یہ کیا کرایا پاکستان کا ہے تو کشمیر کے لوگ بھی اس میں جو ہیں وہ نہ صرف اس کے خلاف ہیں، ہم نے بھی بھگتا ہے 35 سال۔ سب سے زیادہ لوگ اگر ان 35 سالوں میں اپنی جانیں گوا گئے تو یہاں کشمیر کے لوگ، کشمیر کے سویلین، کشمیر کے افسر، جموں کشمیر کے پولیس والے۔ ہمارے جو کچھ جگہوں سے رپورٹ آ رہی ہیں کہ ہمارے بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ باقی ریاستوں میں یہ مت کریے، کہیں پہ بھی میری آج آنریبل چیف منسٹر سے خود بات ہوئی اور میں نے ان سے گزارش کی کہ مہربانی کر کے جہاں پہ بھی اس طرح کی جو ہے یہ باتیں آ رہی ہیں ان پہ فوری طور روک لگایا جائے۔ تو فی الحال جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو بھی ابھدر سلوک کیا جا رہا ہے یا اگر خوف کا ماحول میں وہ جی رہے ہیں تو صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جب دہشت گرد اپنی منشا میں کامیاب ہو رہے تھے ان میں ہزاروں کشمیری ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے وہاں سے لوگوں کو باہر نکالا اور ابھی بھی ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو گھر پہنچا رہے ہیں بغیر کسی کرائے کے، ایسے ٹائم پہ جب ایئر لائنز نے اپنے کرائے 4 گنا 10 گنا زیادہ کر لیے تھے۔ 5,000 روپے کا ٹکٹ شاید اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن کرائے 32,000 35,000 روپے ہو گئے تھے۔ ایسے ٹائم پہ جب کہ کشمیر کے اوپر ایک بدنما داغ تھا، کشمیریوں نے حوصلہ دکھایا، گھروں سے باہر نکلے، رات بھر چراغاں کیے رہے اور اپنے حوصلے کو، اپنے جذبے کو پورے ملک کے ساتھ ساجھا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں، جو IPL کی دھڑکتے 49 روپے کا سٹا لگا کر کے ملک بھر میں نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سترک رہیے اور دھرم کے چشمے سے باہر نکل کر کے
दुनिया की हकीकत देखिए, उन लोगों से बातचीत करिए, उन लोगों को पढ़िए, उन लोगों को देखिए जो इस सानिहे के आसपास थे या वहाँ थे, उन्होंने वहाँ के हालात जो अपनी ज़ुबानी बयान की है उसे गौर करिए। सुहेल काज़मी साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नासिर खैमी साहब नेशनल कन्वीनर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कामरान अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी स्टूडेंट हैं। कामरान साहब, सबसे पहले आपका रद्द-ए-अमल मुल्क भर में चल रहे हालात के ऊपर। जी शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो ट्रेंड कल से मौजूद यहाँ हमारे सामने आ रहा है कि अगर एक अटैक हुआ है जिसकी मजम्मत अक्रॉस द लाइंस, पार्टी लाइंस या अक्रॉस नूक एंड क्रैनी ऑफ कश्मीर आ रहा है, हर एक शख्स इस पे कंडमनेशन कर रहा है, उसके बावजूद फिर आप स्टूडेंट्स को वहाँ पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि आप निकल जाइए यहाँ से। ये बेहद मजम्मत वाला एक्ट है। और दूसरी बात ये कि आप एक स्पेस दे रहे हैं, जो अटैक हुआ है उसकी मजम्मत हर कोई शख्स कर रहा है, जो स्पेस आप बीच में एक खला पैदा करना चाहते हैं लोगों के बीच में, कश्मीरियों के बीच में और रेस्ट ऑफ कंट्री के बीच में, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, इसके बहुत ये खतरनाक नताइज पेश आ सकते हैं। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं जो इससे पहले कभी भी ये नहीं देखा गया कि ऐसे स्टूडेंट्स बाहर आए, ऐसे लोग बाहर आए कि फिर ऑल अराउंड जम्मू एंड कश्मीर वो बाहर आए और कंडमनेशन उन्होंने की इस सारे मामले के ऊपर। तो आप बजाय आप अप्रिशिएट कर लेते इस मामले के ऊपर, आप उसके बजाय इन लोगों के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। ये बहुत ही सैड वाला इंसिडेंट है और इंतहाई मायूसकुन अमल है। ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरीके की सिचुएशन हमने देखी उससे साफ ज़ाहिर है कि अगर किसी को हिस्ट्री और जोग्राफिया समझ में आता है मुल्क का, जम्मू कश्मीर का, तो यकीनन कश्मीर और कश्मीरियों की कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकता, ख़ासतौर पे इस हादसे और इस हादसे से पहले। नासिर साहब, आपके रद्द-ए-अमल चाहूँगा सबसे पहले इन तमाम तर हालात पे, खौफ और हरास के माहौल में। देखिए सर, जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, हम उसकी कड़ी से कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमारी सोरगवान खानदान से जो है ताज़त हैं, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का कोई क्लोज रिलेटिव इस डेथ में, इस सानिया में जो है जिसकी हलाकत हो चुकी है, हम जो है हमारी ताज़ियत उनके साथ है। हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के हालात से वो इस वक्त जूझ रहे होंगे। लेकिन दूसरी ओर आप इस इंसिडेंट, चूँकि इस इंसिडेंट को पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के अवाम ने एक तरफा अपने फेथ, अपनी रिलीजियस जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जो पॉलिटिकल अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, चाहे कोई पीडीपी वाला है, एनसी वाला है, भाजपा है, कांग्रेसी, हमने सारे विचारधाराओं की जो लड़ाई आपस में थे, जो मतभेद हैं, उनको साइड में रख के जो है हम सड़कों पे आए। हमने जो है क्लैंप डाउन पूरा कश्मीर जो है बंद रखा कल, और एक हमदर्दी का इजहार किया, एक सॉलिडरिटी का इजहार किया, और अक्रॉस कश्मीर, खाली श्रीनगर में नहीं, नॉर्थ से लेके साउथ तक, सेंटर से लेके जो डोडा भद्रवा, जो इनसे जैसे इलाके हैं, जम्मू प्रोविंस फॉर दैट मैटर, तो जम्मू कश्मीर के अवाम ने कल एक तरफा एक आवाज में इस कसम, इस जो है सानिया की जो है मजम्मत की, और कहा कि जो दर्दनाक वाक़ा जिन लोगों ने भी जो है पेश किया या अंजाम दिया, हम उसकी कड़ी से कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और जो लोग जिहाद के नाम पे, रेजिस्टेंस के नाम पे इस प्रकार की इंसिडेंट्स को जो है अंजाम दे रहे हैं, वो इंसानियत, वो खाली जो है एक इंडिविजुअल उन्होंने मारा नहीं, बल्कि उन्होंने एक इंसानियत को कत्ल किया है। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि आप उसी के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो मुल्क भर में पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में पढ़ रहे हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स ने एक ऐसा परसेप्शन बनाया, एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जैसे जो है कश्मीर ही उनके असल में दुश्मन है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके जो यूपी तक, यूपी से लेके जो है हिमाचल तक, कल जिस प्रकार कल रात देर गए से अब तक जिस प्रकार ने उन्होंने कश्मीरी के पर जो जातिया की, जो मारपीट की, जो तंग तलबी की, जो थ्रेट कॉल दी, जो ओपन डेथ थ्रेट्स की कॉल दी, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारा इस जिस तंजीम ने भी जो है पहलगाम का इंसिडेंट जो वाक़ा, जो जिसको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या अंजाम दिया, हमारा तो कॉमन दुश्मन है।
जिस प्रकार से जो हिंदुस्तान की डिफरेंट जो रियासतों में इस वक्त जो हालात पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से आप इंटिमिडेट कश्मीरी को कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, आप उनको डेथ थ्रेट दे रहे हैं, आप उनको घरों से बाहर निकाल रहे हैं, आप उनको हॉस्टलों से बाहर निकाल रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आपको जी 10 बजे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, तो यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही इसी प्रकार की एक्टिविटी तो वो यहाँ चाहता है। वो चाहता है कि जो है जो दो रीजनों के दरमियान, जो कश्मीर और दिल्ली के दरमियान जो दूरी गुज़िश्ता 20 सालों 30 सालों से थी, यही तो पाकिस्तान यहाँ चाहता है। तो कश्मीरियों ने तो इकवटा अपनी राजनीतिक इख्तिलाफात, अपने डिफरेंसेस, अपनी फेथ को, अपने रीजन को, सारे चीज़ों को अलग रखा और एक तरफा एक आवाज़ में इस इंसिडेंट की मजम्मत की। लेकिन दूसरी ओर एक तो मजम्मत की, दूसरी ओर उन्होंने जो है जिस प्रकार से हमारे स्टूडेंट्स पे बर्फातिया इस वक्त जो जारी है हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में, जिस प्रकार से उनको जो है थ्रेट किया जा रहा है। पंजाब में आप देखिए कि किस तरह से जो है हॉस्टलों में घुस के उनको मारा गया है। आप उत्तराखंड में देखिए कि किस तरह फ्रिंज एलिमेंट्स कश्मीरी कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी के पीछे लगा हुआ है कल रात से। आप यूपी की बात करें, जहां पे इनको क्या कहा जा रहा है कि आप स्टेट छोड़ के चला जाए। हम तो अपना देश में रह रहे हैं, यहाँ तो आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, आपको कश्मीरी नहीं चाहिए। वही हमें बता दीजिए कि हम इस देश का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात कह रहे हैं, फिर दिल्ली में दूसरी बात जो है उसको जो है पीट रहे हैं कि हमें कश्मीर जो है हिंदुस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। ये जो है अलगाववाद का साथ देते हैं, ये उग्रवाद का साथ देते हैं। जब हमने एक तरफा आपका साथ दिया था, अपने सारे मामलात को साइड में रख के, और ये पुलवामा अटैक तो नहीं है ना, जब हमारे स्टूडेंट्स ने गलतियां की, जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स डाले। आज तो हमने घरों से बाहर निकल के आए, आज तो हमने एक तरफा इस इंसिडेंट को कंडम किया। कहीं जगह हमारे स्टूडेंट्स ने गलतियां नहीं की, किसी जगह हमारे स्टूडेंट ने कोई इन्फ्लेमेटरी जो है कोई चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं लिखी, किसी जगह हमारे स्टूडेंट ने ऐसी गलती नहीं की जिससे बाकी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। हमने तो ऑलरेडी उनको बोल के रखा था कि एक तरफा इस इंसिडेंट की जो है आप मजम्मत करें और आप किसी कम्युनिटी की जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करें। लेकिन बदले में क्या मिला? मारपीट, मार दहाड़। बदले में क्या मिला? डेथ थ्रेट। बदले में क्या मिला? हिरासमेंट। बदले में क्या मिला? इंटिमिडेशन। बदले में क्या मिला? आपको जो है हॉस्टलों से जो है निकाला जा रहा है। बदले में क्या मिला? आपको कॉलेजों से जो है बाहर निकाला जा रहा है। बदले में क्या? आपको हॉस्टलों से बाहर निकाला जा रहा है। तो हमारी बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीजों के बीच में जिस तरह के नफरत भरे माहौल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जरूर कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं जो इस तरह के हालात करें। हालांकि मुल्क एक साथ खड़ा है, उन्हें समझ में आ रहा है और उन्होंने देखा है कि सच्चाई क्या है। उन तमाम तर चीजों से अलग हट करके अगर इस हालात को देखें तो इस बात से, इस मिसाल से सबसे बड़ी वजाहत सामने आ जाती है। दो शख्स को पकड़ते हैं दहशतगर्द, नाम पूछते हैं, एक का नाम सतेंद्र, एक का नाम जितेंद्र। जितेंद्र को मार देते हैं, सतेंद्र को छोड़ देते हैं। क्यों? ताकि जितेंद्र बता सके जा करके कि नाम पूछ करके मारा था। इसका मतलब है कि अगर मुल्क में नफरत का माहौल पैदा होता है, पिनपता है, आपस में हम लड़ते हैं, तो ये दहशतगर्दों की मंशा कामयाब होती नजर आएगी। उन्होंने जो साजिश रची है, अगर वो चाहते तो और लोगों को खुदा न खास्ता हलाक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसी हरकतें की जिससे साफ तौर पे हमारे पूरे मुल्क में बदअमनी हो और तरक्की की राह पर गामुज़न ये मुल्क धड़ाम से नीचे आ जाए। हालांकि मुल्क वासी से कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरह के हालात कुछ जगह पे जरूर देखने को मिल रहे हैं जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास चीजें चूंकि हम काज़मी साहब की तरफ आएंगे और उनकी कीमती भरे अल्फाज हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। मुल्क भर में कशीदगी भरे माहौल के बीच में नई दिल्ली का वाक़या बताता हूं आपको। जम्मू कश्मीर रेजिडेंट कमीशन ने मुख्तलिफ रियासतों में रह रहे कश्मीरी स्टूडेंट के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पे अगर किसी भी तरह के हालात बिगड़ते हैं, या आपको खदशा है, या डर लग रहा है आपको, या किसी भी तरीके से आपको खौफ है, तो बिला झिझक इस नंबर पे कॉल करिए। आप इस मुल्क का एक बड़ा पार्ट है, आप जिस्म का एक बड़ा पार्ट है। अगर जिस्म एक पूरा मुल्क, हिंदुस्तान एक जिस्म है, तो आप उसके जिस्म के ताज हैं। तो यकीनन आपकी अहमियत सबसे ज्यादा है। इन चीजों को, इन अफवाहों को, इस तरह के खदशात को, इस तरह की गीदड़ भपकियों को नजरअंदाज करिए। अगर कभी आप अकेले हैं या इस तरह के किसी भी तरह के खदशे हैं, डर है, तो इन नंबरों पर कॉल करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए बेहतर तरीके से। पूरा मुल्क बगैर किसी मजहब, जात पात के सब एक साथ खड़े हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आपके साथ मुस्लिम है, आपके साथ नॉन मुस्लिम भी हैं, और सभी के सभी बिरादरी आपके साथ खड़ी है। तो इन नंबर पे कॉल करके आप अपने हालात बता सकते हैं और जो भी आपको जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। फिलहाल काज़मी साहब की तरफ आएंगे। सुहेल काज़मी साहब, सबसे ज्यादा अहम कि आपके जो आपने सबसे ज़्यादा देखे होंगे कि 2 दिन से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। हालांकि झुटपुट खबरों के बीच में हमने अपने गम के इस दरिया के बहाव के बीच में इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन चीज़ें बढ़ गई हैं।
देखिए सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जब हम सुनते हैं कि देहरादून में किसी संगठन, हिंदू संगठन ने ऐसा बयान दिया है या ऐसी लेटर्स इशू किए हैं कि देहरादून को छोड़ दीजिए, या यूपी में ऐसा कुछ हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, एक तरफ तो हम पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों से जंग लड़ रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान सदमे में है, और जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 30 साल से एक प्रॉक्सी वार से लड़ाई कर रहे हैं। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के लोग 77 ईयर से ही पाकिस्तान से जूझ रहे हैं, और अपनी जो बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, उनको गंवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो परसों के इंसिडेंट के बाद जिस तरह का आपने मंजर देखा जम्मू कश्मीर में, वो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अमन पसंद हैं, मोहब्बती हैं, आपसी रवादारी को बिलीव करने वाले हैं। अभी चीफ मिनिस्टर ने कहा, आपने सुना होगा, आपके विजुअल में सुन रहा था कि उन्होंने मुख्तलिफ स्टेटों के चीफ मिनिस्टरों से बातें की हैं। देखिए, दुविधा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम किसी भी रियासत में आ सकती है, नेचुरल कैलेमिटी किसी भी इलाके में हो सकती है। मुल्क का यही एक अच्छा एसेंस होता है कि हर रियासत दूसरी रियासत से हाथ मिला के आगे बढ़े और एक दूसरे की दुख तकलीफों में एक दूसरे का साथ दे। हमने बड़ी बड़ी आपदाएं देखी हैं जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में, जहां जो बाकी नेबरिंग स्टेट्स होती हैं वो उनके साथ जुड़ जाती हैं, उस डिजास्टर से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करती हैं। ये देखिए, कुछ ऐसे अनासर हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर पे हमला सिर्फ जम्मू कश्मीर पे हमला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान पे हमला है, पूरी इंसानियत पे हमला है। और इंसान कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, है तो वो हिंदुस्तानी और भारतीय। हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद फिर हिंदू, मुसलमान, सरदार है। ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो सोसाइटी में जो मिलिटेंटों से भी बदतर काम करते हैं, उनको रियासती सरकारों को एप्रीहेंड करना चाहिए, उनको बुक करना चाहिए। पीएसए से भी बड़ा कोई अगर एक्ट लगता है तो उन पर लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो जुर्म होता है वो समाज को तोड़ने का, वो रिलीजियस लाइंस पे होता है या जात पात पे होता है। और ऐसे लोग जो भड़काते हैं या थ्रेट करते हैं किसी भी बच्चे को या बच्ची को या किसी भी बुजुर्ग को, मैं समझता हूँ वो एक क्रिमिनल एक्ट है और उसकी एफआईआर जो है लानी चाहिए और अपनी दुविधाएं जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लानी चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपका चैनल करोड़ों लोग देखते हैं। छोटी सी हेल्पलाइन की बात आपने की है, रेजिडेंट कमिश्नर जेके हाउस श्रीनगर दिल्ली की, तो मुझे लगता है आपके कहने से ही वहां हजारों बच्चों की कॉल्स आ गई होंगी जो उनके रेस्क्यू के लिए ये हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। हम सब एक हैं, हम सबको एक रहना है। हमने अपने दुश्मनों से लड़ना है, ना कि अपने घर के फरीकों से लड़ना है। अगर हम अपने घर में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे को नीचे दिखाना शुरू करेंगे तो दुश्मन इसका फायदा लेंगे, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो इसका और जोर से प्रोपोगेशन जो है वो करता है और हाइप लेने की कोशिश करता है। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ है। प्राइम मिनिस्टर की जो कल शाम को 2.5 घंटे मीटिंग चली है, जिसमें होम मिनिस्टर और सारे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो भारत को स्ट्रेंथ करने के लिए लिए हैं, भारत की भारतीयों को मजबूत करने के लिए, उनकी डिग्निटी को बहाल करने के लिए ये सब फैसले हुए हैं। और हमने जो चीजें कल आपके चैनल पे भी और पूरी दुनिया में जो बता दी हैं कि हम गन और बातचीत इकट्ठी नहीं करेंगे, ये 2014 से मोदी जी कह रहे हैं और हमें बहुत सी अचीवमेंट्स भी मिली है, लेकिन परसों वाले इंसिडेंट में वो कामयाब हो गए और हाइप ले गए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये हमें सब इकट्ठा रहना है, हम समाज को जोड़ने का काम करना है और बगैर मजहब मिल्लत, बगैर पॉलिटिकल लाइंस, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आना है। जहां तक आतंकवाद का ताल्लुक है या ह्यूमन जो वायलेशन है उसका ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं हम सारी जितने भी हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं उनको कोऑर्डिनेटेड वे में ऐसा कोई भी एलिमेंट जब कोई थ्रेट करता है किसी बच्चे को या बच्ची को, उनको बिल्कुल कड़े स्ट्रिक्ट लॉज की तरह बुक करना चाहिए। बड़ी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना होगा, लेकिन हालात जो कुछ बता रहे हैं उसके हिसाब से हम उन गहराइयों को जानेंगे और उसके बाद जो भी हो सकता है हम सभी से यकीनन हम मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। अशरफ भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कश्मीरी स्टूडेंट के मसाइल के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। मुल्क भर में फैले हुए कश्मीरी स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल से जूझ रहे हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोगों ने कई यूनिवर्सिटी की शक्लें देखी और उसके बाद जो चीज़ें कॉमन है
मान लीजिए कि अगर कोई रेडियो जॉकी तो उसे कहता है बोल करके दिखाओ, कश्मीरी है तो उससे 2-3 कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो उससे ज़रूर पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अलग अलग फील्ड के होते हैं कहते हैं कि तुम वो कर करके दिखाओ, ये इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन कश्मीरियों के साथ एक टैग लाइन ज़रूर जुड़ा हुआ है, इससे वो बाहर नहीं निकल पाते। उस तड़प को शायद यूनिवर्सिटी के दौर में हम जैसे स्टूडेंट ना समझ पाते हों, लेकिन आज उस पेन को समझ पाते हैं जब हमें कोई शख्स हमें उस लक़ब या उस टैग लाइन से कोई पुकारे या वो चीज़ हमें याद दिलाए जो हमारे दादा परदादा पुरखों ने कभी सोचा भी नहीं था। अशरफ भट्ट साहब, मुल्क भर में फैले हुए कश्मीरी स्टूडेंट के हालात और इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आई वुड लाइक टू से ये किस तरह की जहनियत पे आपके असर कर सकता है कि जब एक शख्स जो बाहर जाता है, जिसके पास यहाँ पे वसाइल नहीं थे, उतनी अवेलेबिलिटीज नहीं है सीट्स की यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एंड देन ही गोज आउटसाइड द स्टेट, जब वो वहाँ पे रहता है उसको इत्मीनान होता है, उसके घर वालों को भी इत्मीनान होता है कि ये बच्चा मेरा वहाँ पे पुरसकून से रहेगा और इसको कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न वाले मसाइल फेस नहीं करने पड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम जब उससे कोई पूछे कि आप अपनी आइडेंटिटी बताओ, आप प्रूव करके दिखाओ कि आप पैट्रियट है, आप प्रूव करके दिखाओ आप इंडियन हो, आप प्रूव करके दिखाओ कि आप हिंदुस्तान के ऊपर द आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर बिलीव करते हो, वो जो छाप आपके जहन पे डालेगा, वो जो इम्पैक्ट आपकी साइकोलॉजी पे डालेगा, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल इट लीड टू? ये आपके आने वाले वक्त में किस तरह की जहनियत डेवलप करेगा? मैं ये इस नासिर की बात को ऐड करना चाहूंगा जी। जिस दुश्मन ने ये हमला करना था उन्होंने किया और हर एक शख्स ने इसके ऊपर इजहार ताज़ियत भी की और कंडमनेशन भी की। अब जो उसके बाद आने वाले इवेंट्स थे, उसके बाद आने वाला इवेंट ये था कि सारा मुल्क इस पे यूनाइटेड रहे, और जो कि अभी भी है, और इसके ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से इसके खिलाफ बात करें। जब आप फिर डिसाइसिव पॉलिटिक्स में अपने आप को इंडल्ज करेंगे तो आपने तो दुश्मनों के हाथ में खेलना शुरू कर दिया है। फिर आप तो वही काम कर रहे हैं जो दुश्मन चाह रहा है आपको। वो तो वही चाह रहा है कि देखिए, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो, मैं पेशे से जर्नलिस्ट भी हूँ। The current establishment of Pakistan is all time low in popularity. उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही कम है, और जब भी उनकी पॉपुलैरिटी, ये हिस्ट्री में देखा गया है, जब भी करंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉपुलैरिटी कम होती है पाकिस्तान की, तो वो चाहते हैं कोई ना कोई ऐसी हरकत हो कि वो वहां की आवाम के नजरों में आ जाए। That's the point. उन्होंने किया जिस तरह से भी उन्होंने किया। अब वो खेल उन्होंने खेला, यहाँ पे वो हमला यहाँ पे हुआ, उसके बाद जो विशियस साइकिल अब शुरू होने लगा कि बाकी मुल्कों की स्टेट्स में जो लोग हैं वो अब अटैक्स करने लगे स्टूडेंट्स के ऊपर, कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर। दैट नैरेटिव विच पाकिस्तान विल। बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ का कामरान साहब जिक्र कर रहे हैं, आपको बता दें कि वाकई हालात ऐसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ट्रेन हादसे के बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, उसके बाद आसिम मुनीर बाहर आए और उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और उसके बाद कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि लफाजी बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। व्हाट इज जगलर वेन? क्या कहना चाह रहे दुनिया को आप? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हालात के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। कौन है जिम्मेदार दुनिया जानती है, लेकिन कम से कम देशवासियों से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग जिम्मेदार हैं हम कम से कम उनका साथ न दें। नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही, क्योंकि हमने उन चीज़ों को भी स्टडी किया है जिसमें कहीं ना कहीं नौजवान एक ज़हनी कशमकश या उस अजियत से दो चार होकर के जो हमारे मुल्क वासियों, साथियों, दोस्तों के साथ झेल करके वो उस राह को सही ठहराने की कोशिश करते हैं जो कि अलहदगी पसंद या इस जहनियत से जुड़े हुए, अलगाववाद से जुड़े हुए या दहशतगर्दी से जुड़े हुए लोग या मिलिटेंसी से जुड़े हुए लोग उनके दिमाग में भरना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, प्रोपेगेट करना चाहते हैं। दरअसल आमतौर पर ऐसा होता है कि ज़ाहिर उन्हें लगता है कि भाई हमें हिंदुस्तान सही तरीके से अपना नहीं रहा, हिंदुस्तान के लोग सही तरीके से अपना नहीं रहे हैं, और ये लोग इस तरह की चीज़ें मिसालों के तौर पे देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लच्छेदार बातों में देते हैं। नासिर साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या इस जहनी अज़ियत से आम कश्मीरी स्टूडेंट को निकालने की एक वक्त की बड़ी ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से हालात मेन इंडिया में पेश हो रहे हैं,
चाहे बात दक्षिण से लेके उत्तर तक हो या बाकी स्टेट्स जिसमें हिमाचल है, हरियाणा है या बाकी जहाँ पे हमारी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या है, वो यहाँ से जाते हैं पढ़ाई के लिए, डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, फिर वो अलग अलग रियासतों में पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ उनको अलग अलग माहौल मिलता है, अलग लाइफ मिलती है, अलग ज़िंदगी मिलती है। तो एक जब आप उसको उस लिहाज से जो है रेस्पेक्ट देंगे, उस लिहाज से उसको जो है पेश आएंगे, डिग्निफाइड अंदाज से उसको जो है केयर करेंगे, वो जो है उस प्रकार की इफेक्शन उसको दिखाएंगे, तो मे बी उसकी अगर मेंटेलिटी उस प्रकार की हो सकती है कि जिसमें वो आइडिया ऑफ इंडिया पे या कंट्री के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस पे या एंटी नेशनल किस्म का जो दिमाग होगा या सेपरेटिस्ट टाइप का दिमाग होगा, मे बी अगर आप उसको उस प्रकार से जो है ट्रीट कर सकते हैं, मे बी वो कल को जाके 10 लोगों को ये बता सकता है कि नहीं जी हम गलत अपने मुल्क के बारे में जो है गलत सोच रहे थे, हमारी हमें जो बताया गया था घर में कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हम पे जुल्म करता है, ऐसा करता है, जिस प्रकार से एक नैरेटिव, एक जो कीबोर्ड सिस्टम उनका एक चलता है यहाँ, जो अगर आप उस प्रकार से उसको देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रीट करेंगे, उसको उस प्रकार प्यार से जो है पेश करेंगे, तो मे भी देख सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको वो अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर सकता है। लेकिन कल को जाके वो जब हिंदुस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, फिर आप उसको मारपीट करेंगे, फिर आप उसको जो है तंग तलबी करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, पुलवामा जैसा वाक़ा होगा, 370 जैसा वाक़ा होगा, जो है पहलगाम जैसा वाक़ा होगा, आप उसका खामियाजा उस पर भुगत देंगे जिसको दूर दूर का वास्ता भी पता नहीं है। वो होता है हिंदुस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, चाहे वो नागपुर है या दूसरी जगह हो, उसको आप पहलगाम की एलिगेशन दे रहे हो कि नहीं जी आप दहशतगर्द हो, आप आतंकवादी हो, आप जी जो है अलगावाद हो, तो किस प्रकार की फिर आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी मेंटेलिटी को हम चेंज कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि हमने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख़ास देखी, बल्कि पूरे मुल्क ने देखा, वो दिन जब पहलगाम की उन मैदानों में लाशें बिछी हुई थी, पूरा कश्मीर रो रहा था। कश्मीरी घर से बाहर निकल आए, रात के अंधेरों को चीर करके ऐसे चरागां किया और मुल्क को पैगाम दिया, अपने पड़ोसी मुल्क को पैगाम दिया कि हम किस तरीके से पूरा मुल्क, पूरा भारत एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। और ऐसे में जबकि एक यकजहती, यकसानियत, इंसानियत का सबूत कश्मीरियत की तरफ से आ रहा हो, ऐसे में आप उनके दामन पे दाग नहीं लगा सकते, और अगर लगाने का इरादा रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। मैं आपकी तरफ आऊँगा काज़मी साहब, जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि आप जैसे लोगों से, नासिर साहब जैसे लोगों से या कामरान साहब जैसे लोगों से बात करके ज़रूर उन लोगों के दिलों में ढारिस बंधेगी, लेकिन फिर भी उनके एक्चुअल प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मुझसे पूछ रहे हैं सर? जी काज़मी साहब। देखिए सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप के चैनल से आप बात करते हैं और छोटे छोटे मुद्दों को, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, उस पर डिबेट होती है और लाखों लोग अवेयर होते हैं कि किस मुद्दे पे हम डिबेट कर रहे हैं। और ये सब लोग इतने प्रोमिनेंट हैं, इनकी आवाज जो है कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट छोड़ती है, और जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने रखनी जो है हमारा फर्ज भी है, और हमारा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन आप समझिए हमारा आइन है कि हमें सच्चाई से बात करनी चाहिए, और जो हकीकत पे बिमना इंसिडेंट्स हुए उसको दुनिया को दिखाना चाहिए। भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का जो ताज है वो जम्मू कश्मीर रहा है और आगे सदियों तक, जब तक हम हैं तब तक ये ताज रहेगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। और पूरी दुनिया में जब भी बात होती है, जो भी डिबेट आप करते हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी के लोगों ने इस दुख में सब ने आंसू बहाए हैं, और जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान कोई लॉ इम्बाइडिंग फोर्सेस से चलता है, कानून के तहत हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील उसके कानून के दायरे में चलती है। और ये जुर्म है कि आप एक दूसरे को धमकाते हैं, भड़काते हैं, मजहबी लाइंस पे करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपील है हर स्टेट के हर बच्चे से, चाहे उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुतलका पुलिस स्टेशन में जाए। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक सेकंड में कहीं भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कानून ने किसी को इजाजत नहीं दी है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, कि वो इस तरह की हरकतें करे। देखिए, हम अनफॉर्चुनेट, अंडर डेवलप्ड हैं, और नेगेटिविटी का जो थॉट है या नेगेटिविटी का जो प्रोसेस है वो बड़ा जल्दी हम अडॉप्ट करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं, जो अनफॉर्चुनेट है, बहुत
अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यह है कि हमें सच्चाई और हकीकत पे बात करनी चाहिए और हम सब जुड़े रहे और मजबूती से इन नेगेटिव जो डिजाइन है पाकिस्तान के उन लोगों के विद इन स्टेट जो गंदे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको जवाब दें, तो भारत की शान आन बान जो है वो बढ़ेगी और हम इसी तरह हंसते खेलते इस गुलदस्ते में खिले रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिबेट्स करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ये वक्त की जरूरत भी है सर। हमने सुना था, हमने देखा था कश्मीरियों ने किस तरीके से जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी, उस वक्त कश्मीरियों ने कहा कि हम अपने सीने पे गोलियां खाएंगे, आपको खौफ करने की जरूरत नहीं है। कश्मीरियों ने अपने कंधों पे अपने जिस्म पर लोगों को उठा करके वहां से कई किलोमीटर दूर पहाड़ियों में भाग करके उनकी जान बचाई थी। ये सारी चीजें हमने देखा और दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा है, और यही चीजें हिंदुस्तान की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है, तमाम तर कश्मीरी स्टूडेंट के लिए, कि जिस तरीके से आपने सभी हिंदुस्तान वासियों के साथ व्यवहार किया था, अपनी जान की परवाह नहीं की थी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। कामरान अशरफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। चूंकि हुकूमत का एक बड़ा रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा रोल होता है, चूंकि ऐसे हालात हैं और कहीं न कहीं इस तरह के एलिमेंट जो माहौल ख़राब करने की मंशा रखते हैं, उनको इस चीज़ से परवाह नहीं होती कि क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो फिलहाल जिनके हाथों में जिम्मेदारियां हैं? कामरान अशरफ साहब जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू बी मेड क्लियर दैट आप ये बेवकूफ़ी है कि आप अगर इस बात पे यकीन रखेंगे कि वहाँ आपके हमसाया मुल्क या होस्टाइल फोर्सेस जो वहाँ पे है पाकिस्तान में, वो आपको सुकून से रहने देंगे, वो ये हमले नहीं करेंगे, वो इस तरह के इंसिडेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। बट नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन आवर हैंड। द यूनियन गवर्नमेंट इज नाउ मैनेजिंग ऑल द सिक्योरिटी कंसर्न्स हियर। उनको अब ये ख्याल रखना है कि कैसे हम इस तरह के इंसिडेंट्स को मिनिमाइज करें, कैसे किस तरह से ऑलरेडी प्रियम्प्ट करें हम, जब भी कोई थ्रेट आता हो तो उसको उससे पहले ही हम उसके खिलाफ एक्शन लें, कैसे हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को कम्प्रहेंसिव तरह से सामने ले आएं कि ताकि कोई भी फ्रिंज एलिमेंट हो या कोई भी होस्टाइल फोर्सेस हो जिनका मकसद हो कि यहाँ डिसरप्ट हो, यहाँ माहौल खराब हो, हम पहले ही उस इशू को ये हल करें और उसके खिलाफ एक्शन लें। फॉर एग्जाम्पल, कल जब ये इंसिडेंट हुआ है, परसों जब ये इंसिडेंट हुआ है, क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता है इस वक्त कि हम अकाउंटेबिलिटी भी करें, अपने आप से भी पूछे कि क्या हमसे भी कोई गलती हुई है, क्या हमसे भी कोई कोताही हुई है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के रिलेटेड। आपको तो पता है कि आपका जो नेबर है, ही इज एट स्टेक, कि वो किसी भी सूरत में आपको पीसफुल नहीं रहने देगा, वो कोई भी मौका छोड़ेगा नहीं कि आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी सरगर्मी करेगा, वो चाहे अस्करी हो या नैरेटिव वॉर हो, उसमें आपके खिलाफ वो कुछ ना कुछ, वो तो सफ़े आ रहा है उसमें आपके खिलाफ। बट नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपॉन अस, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्चुअली अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो, कि यूनियन गवर्नमेंट के ही को इस वक्त मैनेज कर रही है सारी सूरत हाल यहाँ पे, सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स। उनको चाहिए कि एक कम्प्रहेंसिव प्लान लेके आए कि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो इनको कैसे हम अपनी इंटेलिजेंस की मदद से इसको रोकें, इसको होने से पहले ही रोकें। हम जब ये इंसिडेंट होते हैं फिर इसके बहुत सारे वर्स नताइज होते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा कौम, हमारे लोग अभी उस नतीजे पे, उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि जहां पे हर एक नैरेटिव को वो जवाब दे सकते हैं अपने तौर। अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहना चाहिए कि एक तो उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स के रिलेटेड इस मामले को देखना है, सेकंड कम से कम मीडिया एज वेल एज लीडरशिप को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग तो उन्हीं की बात सुनेंगे, हर एक लीडर की एक फैन फॉलोइंग है, वो उन्हें कहें, वो उन्हें समझाएं कि ये इस वक्त डिविजन्स का नहीं है, ये वक्त इस वक्त यूनाइटेड रहना है। आपके हॉस्टाइल फोर्सेस चाहते हैं कि आप डिवाइड हो। अब उस हॉस्टाइल फोर्सेस के जो भी मकासद है उससे बचने के लिए हमें अपने क्रिमिनल जो डिसहार्मनी है हमारे लोगों के अंदर, उससे बालातर होके, हमारे पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन से बालातर होके हमें एकजुट रह के इस सारे इशू को देखना पड़ेगा। और हमें चाहिए कि जो चीजें इस वक्त हो रही हैं उनके खिलाफ हमें सफ़े आरा होना है और किसी भी दुश्मन की किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना है। So this is what people need to understand. This is what the government need to understand, that they have to take
the security apparatus, review of the security apparatus कि किस तरह से minimize किया जाए इन risks को. बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है और यकीनन इन तमाम तो चीज़ों को गौर करने के लिए किसी बहुत बड़े दिमाग या बहुत पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी भी सच्चाई को देख सकता है. नासिर साहब, आप लगातार अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, लगातार लोगों को बेदार करते रहते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सच्चाई पहुँचाते रहते हैं. यकीनन उन तमाम तो चीज़ों से बहुत सारी बेहतरी लोगों के अंदर आती है. मैं काज़मी साहब आपकी तरफ आऊँगा. एक सवाल जो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में गूंज रहा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, वो ये कि वो लोग जो इस तरह के एलिमेंट हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं कि सच्चाई पता नहीं, उन्हें भी सच्चाई पता है. आप उनके लिए कुछ कहना चाहें, क्योंकि बरसों से लगातार आप मीडिया इंडस्ट्री में रहे, फील्ड वर्क करते रहे, अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, एक सियासी पंडित की तरह आप काम करते हैं, दुनिया की बहुत बारीकी से समझ है आपको इन तमाम तर चीजों की भी. मैं आपसे समझूंगा कि उन लोगों के लिए क्या पैगाम आपके नाम. देखिए, कड़ी मेहनत, पढ़ाई लिखाई और अपने काम में कन्विक्शन से ही इंसान का जो नाम है वो बनता है. कुछ लोग हम देखते हैं समाज में जो बड़ा जल्दी हाइप लेना चाहते हैं और सुर्खियों बटोरना चाहते हैं और वो गलत चीजें करके वो अपनी हाइप लेते हैं. वो चल नहीं पाते हैं, ना वो नाम बना पाते हैं. वक्ती तौर पे वो सुर्खियों में आ जाएंगे कि इस संगठन ने ये थ्रेट दिए और ऐसे ही वो हिंदुओं के ठेकेदार बने या मुसलमानों के ठेकेदार बने या किसी और कम्युनिटी के ठेकेदार बने. लेकिन बाद में एक दिन बाद, 2 दिन बाद उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है. सोसाइटी को जो तोड़ने का काम करता है वो सोसाइटी से अलग थलग होकर रह जाता है. तो हमें आपके माध्यम से उन लोगों से अपील करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि अपने काम के हुनर पे अपना नाम बनाइए. गलत एक्टिविटीज, गलत स्लोगन्स, गलत जो र्यूमर मॉन्गरिंग है वो फैला के अपने नाम बनाने की कोशिश ना कीजिए. उससे आपका घर भी टूटेगा, समाज भी टूटता है और समाज को झटका लगता है. हमेशा पॉजिटिव ब्रेन से, पॉजिटिविटी से समाज को जोड़ने का काम कीजिए और समाज खिलता रहे, हम सब खिलते रहेंगे और कहीं भी नेगेटिव चीज जो है होने से अवर्ट हो जाएगी. कहीं भी कोई गलत चीज होने से रुक जाती है या सहम जाती है. तो मेरा यही आपसे गुजारिश है. लेकिन आप रोक नहीं सकते, कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां लगी हैं, आप उनको कर्टेल नहीं कर सकते. लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी डिबेट्स से, ऐसी विचारधारा से जब तक उन तक पहुंचती है कहीं रोकथाम हो जाती है. लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है. भारत एक रूल ऑफ लॉ से चलता है और हर स्टेट में रूल ऑफ लॉ जो है बड़ा स्ट्रेंथन है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं. कहीं भी कोई भी चीज आपको परेशान करती है, मुतलका थाने में जाएं, मुतलका डीसी के पास जाएं, मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास जाएं और अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें और इमीडिएट सोशल मीडिया की हेल्प लेके आप केसर टीवी तक पहुंचिए और उस पर डिबेट शुरू होगी और उसका समाधान इमीडिएट होगा. तो हमें खिलते रहना. बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा. बहुत शुक्रिया सर आप तीनों हजरात का कि इतनी खूबसूरत बातें हम तक पहुंचाई और यकीनन इतनी देर तक जो आपने कीमती वक्त दिया हम सभी के लिए, इस इंसानियत के नाम, इस कश्मीरियत के नाम जो हम सभी ने देखा और उस चीज़ को अपने दिलों में महसूस करते हैं. बहुत शुक्रिया. पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुल्क भर में हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मांग की है, मुतालबात किया. मेरी जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनसे ये भी अपील होगी कि आप थोड़ा सा अपना जो अभी टेम्पर्स रेज हो रहे हैं, प्लीज डू नॉट पनिश जो हमारे इनोसेंट कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं. इतने यंग एज पे निकलते हैं कश्मीर से, बिकॉज यहाँ आपको पता है तालीम उतनी अच्छी नहीं होती है. सो दे लीव कश्मीर, दे लीव द कन्फाइंस ऑफ देयर होम्स एंड ये जाके बाहर तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं. तो मेरी सारे जो हमारे देश के लोग हैं उनसे यही अपील होगी कि आप प्लीज इनका ख्याल रखें. और स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे वाकया आ रहे हैं न्यूज में. ट्रेडर्स ऑल्सो, जो शॉल वेंडर्स होते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं जम्मू कश्मीर के, हैंडीक्राफ्ट्स हो, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हो, शॉल्स का बिजनेस हो, हमारे स्टूडेंट्स भी हो, उन पे अटैक किए जा रहे हैं. उत्तराखंड में हमने खुद देखा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जनता दल या कुछ करके, बजरंग दल करके, जिनने सीधे एक अल्टीमेटम दिया है कि 10 बजे तक जो वहां सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड में उनको निकलना पड़ेगा. तो आई ऑल्सो अपील